Like when I grew up, I hear, oh, I guess Haram Zada. अगर किसी ने लेके कोशिश की तो भूल कर रख दूंगा. जानी तुम जानते नहीं. Indian audience is one of the most generous audiences on the planet Earth. मैंने चाचा बोल के काफी दिन काम चला रखा है. चाचा बोल दो चाचा क्या हाल चाल है. काफी लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ. मैंने कहा कि क्योंकि बेटा की तरफ से बहुत बुरा हुआ, मैं आपके साथ हूँ. Adil, the spectrum of work that you've done, I mean, from big bad Bollywood to very sensitive films like Mukti Bhavan and Nirvana N, and so is your approach different for the two ends of your work? Not really. No, because it also depends on how much the other is demanding from you. Sometimes some directors would be keeping me awake all night, he's so trying. There was this film I did, which one of the finest films I did, and unfortunately it never got released in India. Quite a lot of films I did never got released in India. हमारे वो लद्दाख से Tenzing भाई है इधर चले गए. Oh, you were there. हाँ, वो समझ रहे हैं ना. तो जैसे what will people say, ran for 6 months in Norway, and it was the Oscar submission from Norway, but never released in India. So तो आपको लगता है तब दुखी हो जाते हैं हम ना. हमें लगता है कि अच्छा हमारे देश में इस किस्म के फिल्में देखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा वो बहुत बड़ा सवाल है. उसके लिए अलग सा एक पूरा सेशन रख करके पूरा 25 दिन brainstorm करना पड़ेगा. So we might have to do that, but I don't think that in the demand that the other one would have of you as an actor. An example, the film that I was talking about, it's called Arunodaya, Sunrise. You have seen Partho's film. It opened in Busan and it got in Tribeca. It got amazing reviews across the globe, from Hollywood Reporter to Variety to everywhere, but never released in India. And he used to call me every 3 hours, Dada, in Bengali. He was Bengali, and I think I'm 1 year senior to him. Dada, ki bhabcho. So those days, I was just shifting from sort of so-called method acting to another way of acting. So my entire approach was not to think what I'm going to do. So I used to tell him, Kichu bhabchi, I'm not thinking anything. What do you mean? I'm like, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, and that is very difficult not to think about it, what you want to do. And it took quite a few years. So, and some directors would blindly cast you, Adil to kar lega. And then you are in trouble. I don't know, it's your film. You are a director. You tell me what to do. Like Mukti Bhavan, he was 23 years old when he directed me, the director. And he is so shy. He is almost as shy as Ang Lee. Ang Lee would be like, he's just sitting in front of you. And he came and directed me once in the entire shoot of Life of Pi. He comes and says, can you put 10% affection to your sternness? उतना ही बोला एक ही बार, बाकी कुछ बोला ही नहीं. So he's right when he says that the directors like him, they solve the problem of acting by casting the right actor. That is 50 to 60% job is done like that. So, but on the other hand, some directors would be wanting an intellectual discourse with you to tell you the backstory, which is great. I am ready to hear, but don't demand from me that you make your backstory, because my method is different. Some directors demands that, and I have heard torturous stories from my co-actors. Quite a lot of my co-actors, I've heard torturous stories like, oh, the director made me do this and do that. I said, you refuse to do it. Or just say, sorry, I will find another director to work with in my next film or this film. Because directors have different ideas, but when you cast an actor,
Thank you so much. So kind of you to bring that. I was wondering how do you drink from there. So when you cast an actor, you must. It's a package deal. It's not like anything is a package deal. When you marry somebody, it's a package deal. You know, it's not like the looks only. You'll get everything. 7 generations of traits in the body of your spouse. You know, all the traits, the diseases, the everything. It comes as a package deal. No, always. Similarly with actors as well. It's a package deal. You must marry that as well. You cannot demand that, oh no, Adil has to follow method acting. There are some directors I have seen talking about actors from FTII when I was teaching there. So they were talking in front of me, not knowing I'm listening. And actors are like just props, you know, they're just there. Because who said that? Tarkovsky says that. Tarkovsky says that, but you are not Tarkovsky. आप बनो ना पहले Tarkovsky. तब हम जाएंगे आपके साथ काम करने, कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, हम आपके props हो जाएंगे, कोई problem नहीं है. But you must respect. It's a mutual respect to each other. So am I answering your question? It's leading with another question, because basically what happens, I mean, I often wonder, an actor like you who has a body of work outside of Bollywood, but you're known as Sridevi's husband in English. Yeah. So now you're also Janvi's father. So maybe. I've just seen it. So now you're both. Yeah. So he's played both Janvi's father now. So does that bother you? I mean, the fact that your actual body of work is in cinema, that very few people are watching. We're talking about your films not being seen or not being released. So as a professional, yes and no. It does sometimes. Like somebody came, I think yesterday or today. Mike. Oh, sorry. Yeah. You can't hear me? You can, no? Somebody, I think yesterday I went to see Ulaj. You did, okay. And somebody came. He's a poet from Gurgaon, and he saw me in one film, which is English Winglish. So he said, "आप करते नहीं हो? आप तो इतना अच्छा एक्टर हो." मैंने कहा, "क्या? काम नहीं करते हो?" 14 साल पहले मैंने किया था वो इंग्लिश में. बस उसके बाद ये उनके पिताजी मैंने 100 फिल्में की हैं, बट अलग अलग भाषाओं में हैं, अलग अलग देशों में हैं. अब तो तब थोड़ा सो है, मुझे लगता है कि यार क्या करें, what should I do, you know? That's the same problem that Tenzing and we're having the same issues, you see. We'll have to follow his example that we buy temporary cinemas, floating cinema, what is it called? I know him very well. I met him in Dhamshala festival and just keep running Adil Hussain cinema, 100 cinema there. आगे देख लो. दूसरा उपाय तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है. Like do a festival of Adil Hussain films. तो continuously 100 cinema करने में तो बहुत time लगेगा ना. So एक साल मेरा ही festival चल रहा है. That people don't ask you this question. Yes, What were you exactly. doing for 14 years? बस 14 साल एक ही फिल्म किया आपने. So yeah. It bothers me तो sometimes. ये जैसे यहाँ पे भी आपको लोग आकर प्रहलाद चा बोल रहे हैं, तो ये जब एक्टर कैरेक्टर बन जाता है तो वो फीलिंग, जैसे ये इंग्लिश श्रीदेवी के हस्बैंड है, कॉप भी बन गया. नहीं तो ये वो फीलिंग क्या है कि आपको लोग आके सीधे बोलते हैं प्रहलाद चा? मतलब चाचा ही बोल के काफी ने काम चला रखा है. चाचा बोल के, चाचा क्या हाल चाल है. काफी लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ. मैंने कहा कि क्योंकि बेटा की डेथ होकर बहुत बुरा हुआ, मैं आपके साथ हूँ. एक बार तो एक साहब टॉयलेट के अंदर तक आ गए. बहुत दुख हो रहा था आपको देख के. मैं मेरी माँ से बोल रहा था देखो यही सब. फिर एक काफ़ी जगह जाता हूँ जहाँ पे आर्मी के लोग होते हैं, उनकी बीवियाँ आती हैं. मैंने तो मना कर रखा है, गोली मत चलाना. हाँ चलो तुम मत. तो वैसा नहीं होता है. पर ये कि वो उस कहानी उसका जो अगर किरदार इतना अच्छा है तो राइटर मिलना चाहिए. उसने ऐसा लिखा है कि हम आप लोग जो है उसके मतलब उसका सब कुछ है, मेरा तो कुछ नहीं, हमने कर दिया.
पर हाँ ये होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग, जैसे आपकी बात, सर की बात कर था कि हम जो इतने साल बाद का जो गैप जो साहब पूछ रहे थे सवाल की 14 साल आप कहाँ थे, वो कि हम लोग के बीच में ही जो हम लोग बना रहे हैं ना, उसके बीच में एक और दुनिया चल रही है, इसे बोलते हैं पीपीटी। उसको मैं ढूंढ रहा होता हूँ हमेशा, क्योंकि वो गलत डेटा बता के दुनिया को पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। जो चीज़ दिखानी चाहिए वो हम जो है कभी नहीं देख पाते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना कि एक हमारे साथ एक साहब बैठे, उनकी फिल्म है जो कहाँ गई थी और अपने देश में नहीं दिखा पा रहे। तो उस पीपीटी वाले को ढूंढना चाहिए ना, जो कहीं बता रहा है लोगों को कि ये थिएटर में ये चलेगा, और वो भी नहीं चल पा रहा है। वो चल नहीं पा रहा ना दोस्त। हज़ारों करोड़ रुपए जो है जमा करने के बाद भी 500 लोग नहीं ला पाते, तो फिर नहीं हो पा रहा ना। फिर आपसे फिर मत बताओ कि दिस विल वर्क, है ना। करेक्ट। जहाँ फिल्म बन रही है वो आप दिखाएंगे नहीं। इतनी ढेर सारी फिल्में हैं आपकी, मैं बात कर रहा था जब आप, क्योंकि मुझे था नहीं पता दोस्त, क्योंकि अगर वो तुमने किया तो बहुत बड़ा काम किया, अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और आप इतने छोटे हैं, सच में कोशिश है एक दो और खुलना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि दूध पीने से कैल्शियम आता है, वही वाली बात होती है ना कि पिक्चर दिखानी पड़ेगी ना। हम लोग फिल्म ही नहीं दिखा रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, क्योंकि सबको पैन इंडिया फिल्म बनानी है, समझ रहे हैं। कोई को फिल्म नहीं बनानी है आधे टाइम बैठ के, और जिनकी बनी हुई फिल्म है वो आप देख नहीं रहे हैं। वो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए भी कंपनी आई थी बीच में, मैं कुछ काम किया था जी, वो भी कहीं पागल हो गया बीच में जाके। मतलब सच में बताइए, वो कहीं कुछ और करने लगा उसको, कि सब लोग, ये देश जो है ना स्टार ड्रिवन है ना इतना, कि उसमें भी कोई ना कोई चाहिए उसको। सच बता रहा हूँ, जितना हम लोग, पहली फिल्म जो बनी थी उसमें स्टार था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। जहाँ से शुरू होती बात, करप्शन बाद में आता है ना, जब चलने लगती दुकान। क्या होता है, शुरुआत में सब बोलेंगे मैं ना दिल से फिल्म बनाना चाहता हूँ, जैसे ही पहली चल गई फिर उसको भी चाहिए होता है कि यार उसको ले लें क्या। ये सच में है दोस्त, मतलब ये सच, ये बात सच है। आप नहीं कह रहा हूँ पर ये फाइट है भाई ये। और वो इतना, मतलब इतना ढेर सारा पिक्चर हॉल है, अगर कोई भी दिमाग का आदमी चाहे तो एक जगह पे शुरू कर दीजिए, और ये कम्युनिटी वाइज अगर चलाना चाहे तो दुनिया का हर एक आदमी उसमें पैसा डाल के देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, हो रहा है ना, देखने वाले तो हैं ही है ना। पर नहीं, उसे कुछ और करना है, उसे वो पैसा जलाना है कहीं और जाकर। और जितना इस देश में का बजट नहीं है भारत पाकिस्तान की उसका वॉर का, ये बना के करेंगे। एक और इंडो पाक फिल्म बनाते हैं अच्छी है भाई, इसका आइडिया करेगा, इसका आइडिया बस ये कह रहा हूँ, वो सही में हुआ था। बाकी तो एक आदमी 500 लोगों को मार रहा है। मैंने एक फिल्म देखी थी केजी, उसमें 1800 लोगों को मारा था उसने, मैं गिन रहा था स्टिल करके, एक हीरो 1800 लोगों को मारा, उसे ब्लेड भी नहीं लगा। और ये आप जाकर 1800 लोगों को मारा, मैंने गिना क्योंकि मैंने सिर्फ मार ही रहा है वो, और उसकी 14 बार एंट्री है, अपनी फिल्म में एंट्री करता है बार बार। तो मैंने देखा कि ये दुनिया का जो मास को आप कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं, अच्छा तब इसकी फिल्म दिखा तो देख लेंगे भाई, अच्छा है। पर नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे। पर आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग फाइट करिए, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो फाइट नहीं रहेगी ना भाई, है ना। तो पहले ये जो अपील है कि हम लोग 70s से कर रहे हैं बिल्कुल हाँ, और कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि 70s में एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा आई थी जो थोड़ा बहुत चला था, जैसे बाबू चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, ये लोग, गुलजार, इन्होंने फिल्में बनाई जो एक टाइप की फिल्में थी, मगर उसके बाद वो खत्म हो गई। पीपीटी वाले को तो ढूंढना है। मैं पहले काम कर चुका ना चैनल में, पीपीटी आती थी कि ऑडियंस का स्पैन ये हो गया है। मैंने क्या बात कर रहे हो, ऐसा है तो बाकी पिक्चर लोग नहीं देखने वाले। कहें नहीं, अभी आजकल नया चल रहा है कि 3 मिनट के अंदर सब बदल जाता है, 1 मिनट में रील आ जाती है। तो मैंने 8 घंटा पूरा बिंज करते हैं। हाँ, ये बताइए इसमें कहाँ चला जाता है। सीरीज आप देखिए, अगर सबसे अच्छी सीरीज आप मानते हैं ब्रेकिंग बैड, वो 10 साल अपने ऑडियंस के साथ थी। 10 साल में सब कुछ चेंज होता है ना, तो हर एक आदमी को एक जैसी चीज़ बनाना मत कर दो बंद कि तुम भी वही बनाओ, वे भी बनाए। कुछ लोग तो पीपीटी वाले भी बोल रहे हैं कि कान को पहले 5 मिनट में सब हो जाना चाहिए। लड़की निकली, गिरी, मर गई, पापा ऐसे हो गया। आप ऐसे कोई ब्रीफ होता है क्या? तो वो लोग यही कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अजीबोगरीब है, वो हास्य जैसा है कि अच्छा ये करने गए तो ये, क्योंकि आपका सर यूनिकनेस जो है ना खत्म हो जाता है, वो एक जैसा लगने लगता है, फिर वो टेम्पलेट बन जाता है, टेम्पलेट है वो, फिर वो कैसे कर पाएंगे हम। मैं जिस शो का पार्ट हूँ वो बहुत ही धीरे शो है,
नॉर्मल लाइफ में जो पहली बार ड्राफ्ट पढ़ा तो कहता कौन बनाएगा इसको, देखने लगे लोग कौन है भाई इसको, कौन लाया है इसको, क्योंकि कोई नहीं देखेगा। पर वो देखिए लोगों ने ऑडियंस अपने आप से ढूंढ के देता। आप उसके लिए आप वहाँ तक जाइए तो फिल्म बनी हुई है, अफसोस होता है कि हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। ये जो है बहुत गलत बात है। So we now have 10 to 15 minutes for questions from the audience. Please. Yeah. सुनाई देता माइक की जरूरत खाली खाली सा सॉन्ग जो है जी जी जो है उससे आप कितना रिलेट करते, क्या चैलेंज फेस किया था? इससे गाने से कुछ चैलेंज फेस करूँगा। नहीं गाना तो बाद में है ना। उसमें जो शहीद हो जाता है उससे आपने क्या चैलेंज फेस किया था जब घर में अकेले रो रहे होते हो जी अच्छा उससे? हाँ वो अच्छा बोल ही सकते क्या बात है। नहीं तो उससे रिलेट कर देखिए भाई, ये जो चीज़ है वो नॉर्मली बहुत से लोगों के साथ होती है। बहुत से लाइफ में लाइफ और डेथ है, आपके साथ भी हो रही, मेरे साथ। मुझे जब पहली बार जब किया गया तो मैं भाग गया। मैंने कहा भाई ये सब तो नहीं हो पाएगा मुझसे कि मैं रोऊं, मैं क्योंकि रोता नहीं हूँ तो नॉर्मली कैसे होगा ये। पर उससे धीरे धीरे करके डायरेक्टर राइटर ने साथ में बैठे, उसका तैयारी किया, तो उसको कुछ चीज़ें पूछी मैंने कि कैसे है क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेन नहीं हो तो 4-5 एक्टर लोगों से पूछा, देखा उसे कि भाई इसको बताओ क्या करना हाँ रणदीप से पूछा एक दिन बैठ के कि भाई ये सब करना है, रोना धोना कैसे होता है, तो हंसता ही रहता, हंसी ना आ जाए मुझे। पर ये है कि धीरे धीरे करके वो जब आया तो उसको किया गया। फिर अब उसके लिए आप ये पूछेंगे तैयारी तो मैं नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, कि मुझे आप पता ही नहीं क्या होती तैयारी। कभी कभी एक अच्छा इंसान जो है अच्छे से आपको वो कर सकता है पर वो पढ़ा नहीं सकता है, वैसा लचक कर रहा है कि मैं जो मुझे पता है कैसे हुआ हो गया। 6-7 दिन तक रो धो के बैठे हुए थे, कोई बात भी नहीं करता था। मूवी में दिखाया गया आप हमेशा हंसी मजाक करते हो, अचानक से वो हाँ वो 7 दिन मेरा बहुत बुरा बीता था ना। मैं अलग कहीं रहता था, लोगों से मिलता जुलता नहीं था, फिर रात में वहाँ पे आता था, शूटिंग करके चला जाता। और ये लोग बताते भी नहीं थे कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। वो मुझे 1 साल बाद पता लगा ऑन एयर पे कि क्या हुआ था। मैं पूछता रहता, सब बोलते थे खराब कर दिया तुमने हो गया, तो ऐसा था। पर होता है भाई। Any other questions? Yeah. I can hear you. Yes sir. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं थिएटर एक्टर हूँ और मेरी को एक्टर जो है वो मेरे साथ थिएटर करती हैं, तो अब उनको ना स्क्रीन एक्टिंग की तरफ जाना है। तो सर जब उन्होंने मुझे बताया कि उनको स्क्रीन एक्टिंग की तरफ जाना है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन बताने को, तो मेरा जो माइंड है वो बहुत ब्लैंक हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डिफरेंस क्या है स्क्रीन एक्टिंग में और थिएटर में। एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? Basic difference between film acting and theatre acting, that's the question for everybody else to understand. Whatever I have understood so far, and don't take my words for like it's the ultimate, not a commandment or Bible. What I have understood so far is very simple and very basic, is that the difference is of proximity. Now, Faisal is sitting besides me, and if I have to talk to him, so now this is a chat between both of us, right? Now imagine this has to be done on the stage, Right? And but this stage is very like what is the capacity of this hall? 120. 120. Just imagine 500 capacity, or which are not very common these days anyway. So, but there are halls, no? इन लोगों ने आपको कल लाया। जी हाँ। अच्छा, इसका मतलब है इनके पास बजट है। यही पूछा था मैंने। हाँ? तो ये जो मैंने, because I want the last row, I want them to hear me clearly. So it's not only about to hear, see, audio is a consequence of your physical, biological feeling. It's an extension, audio is an extension of your being. You can touch somebody by your voice, like hey, otherwise you'll say hey, you know. So if for example, this is the stage part which we did. Now imagine this same conversation on camera, and where Sehbalji is sitting, the camera is there, and he's catching me. here is a mic.
hidden mic, always there. You can whisper. So ये जो उन्होंने किया, ये स्टेज के लिए ठीक है. कैमरा के लिए ये जो हुआ ना, कैमरा में ज्यादा दिखेगा. कैमरा में कुछ डायरेक्टर चाहते हैं कि ज्यादा दिखे. वो हमारे भारतीय फिल्मों के अभी चेंज हो रहा है काफी. भारतीय फिल्मों में बॉडी लैंग्वेज या वोकल एक्सप्रेशन थोड़ा ओवर द टॉप है. OTT है. So in cinema, what Faisal did is not required, but it might be demanded out of it by the director. Like, even the same feeling he can just do this way. For example, हमने तो बताया नहीं. ना काफी है. Like from here, like, you understand? The inner feeling Is not necessarily has to be the inner feeling does not have to be accentuated by your physical language. That is the basic difference. That means camera is almost like on camera you're performing for somebody who is sitting on your lap. On the stage you're performing for somebody, the first person who is sitting here is at least 3 meters away from me. The last person would be around 50 meters away. You understand the difference? Yeah. It's just proximity for me. But some people might say something. There are other aspects as well. But this is the fundamental. If you can crack this, then you're fine. Cinema in that way is way easier. Way easier. But if you understand the difference, then it becomes easy. Otherwise, again, you will be very loud. Oh my God, how are you feeling? Oh, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई. कैसा लगा? ऐसे बहुत सारे अभी भी करते हैं लोग. और गले का जो बैरिटोन लाने की जो कोशिश होती है फिल्मों में भी आजकल भी. मेरे दोस्त है काफी सारे NSD को बॉम्बे चले गए. 2 दिन बाद फोन किया. आदिल क्या हाल है यार? तो कौन बोल रहा है? अरे यार अनूप ये बोल रहा हूँ. अरे तेरा आवाज कैसे हो गया यार? नहीं ठीक ठाक. और बताओ क्या चल रहा है आजकल? You don't have to lower your baritone. Lower your note. You can just keep it. So I'm saying that is also the notion of acting that we grew up with. Like when I grew up, I hear, oh, I guess Haram Zada, things like that. Shatrughan Sinha Sahab, and we loved him. It's not that we didn't, we loved him. अगर किसी ने लेके कोशिश की तो भून के रख दूंगा. बच्चन साहब, we're wow, जानी तुम जानते नहीं. So all these people. So there is an acceptance. Indian audience is one of the audiences are one of the most generous audiences on the planet Earth. We are not critical. We are innocent. But we have been taken for a ride by the film industry. We have been taken for a ride. So when your innocence is being exploited, that's what is happening right now. Any more questions? Yes. I think Okay, I think we have just time for the last question. You can say it loudly. My name is Amir and Hi, Amir. I worked with Village Square in the past. sorry. I worked with Village Square in the past. Oh, you did. Yeah. So my question to you both of you is: in India, there are 900 million people living in rural India. Okay. Correct. And as far as I have seen, both grief and celebration are form the part of their life. So when you are choosing a story to tell, whatever audience, what are the basics that you follow? That okay, this is the story that I follow. For example, we were watching Wolverine the other night. What? Wolverine the other night, and we couldn't relate to it. Of course, couldn't relate. Nothing concrete, no dialogue that resonated with us. On contrast, when we watch Panchayat, we relate to it. So,
how do you choose which story to tell and which story to reject out in Toto? मेरे हिसाब से जैसे पढ़ा एक कहानी को लेकर तो कुछ ही मतलब तो पूरी का स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए पहले 5 पढ़ने के बाद क्या है क्या नहीं। लेकिन चीज़ ये है कि वो जो पार्ट है और ये जो कहानी है कितना रिलेट कर रहा है कि ये ऐसा कुछ होने से आदमी डर नहीं जाएगा। मतलब कि आइडली क्या होता है कुछ फिल्में हम देखते हैं ऐसे, जैसे मैं KGF की बात कर रहा था, उससे मेरा इशू नहीं है, ऐसा हो सकता है बस है, पर उसका और क्या था पता है कि उसमें यही था। वो एक एड फिल्म में डायग्राम देखा, वो तब तो खराब लगा कि कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा ना इसे, कोई भी फिल्म है जैसे तो उसको जब रिलेटेबिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है कि ये कहानी है या फिर ये एक तरीके का प्रोफाइलिंग है किसी दुनिया का। नहीं होती काफ़ी फिल्में तो ऐसी भी आती हैं जो चल ही रहा है। प्लस क्या है, राइटिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्त, उसी से आता है समझ। बेसिक तो वही है ना कि लिखा अच्छा है कि लिखा अच्छा नहीं है, यही से शुरू होता है। लिखा अच्छा नहीं होगा तो नहीं करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता है। पर वो बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि राइटिंग ही ओरिजिनल है, वही सेट है। वो कहेगा नहीं, मैं कहना शूटिंग के टाइम पे ये बदल के ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो राइटिंग से ही आता है समझ में कि क्या उसका लेवल है, कितना वो सीरियस है, कितना किस तरीके से लिखा है, उसमें कितना उसका टाइम गया हुआ है ना। इसलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पढ़ी नहीं स्क्रिप्ट और जाके एक्टिंग करी, ये मत डरता। वो लोग कौन होते हैं नहीं आता क्योंकि है ना, कैसा कुछ लोग करते हैं, ऐसा मैंने देखा है कि वो नहीं पढ़ते हैं। मैंने एक बार करके कान पकड़ लिया कि नहीं करूँगा जिंदगी में। हाँ मैंने कर दिया एक बार, मैं फंस गया था या और मैंने कहा, मैंने सोचा कि ठीक है, हाउ टू अवॉइड इट pressing, so I said okay. I asked my manager to charge 5 times my amount, 5 times the amount, and thinking that 5 गुना ज़्यादा मांग रहे, पागल है क्या आदमी? Who do you think? Who does he think he is? करके मना कर दिया, नहीं किया, हाँ कर दिया, तो मुझे करना पड़ा। I didn't have the time to read the script. I did it, and the director became my best friend after that. Yeah. Anyways, so nahi, just to add to that is that it is very difficult to find a very good script in terms of very difficult, very rare that you find amazing script in India, unfortunately. When you find it, you're like, oh my God, you know? And Faisal comes from a different orientation of understanding and background. Fortunately or unfortunately, I come from a very different one. I ended up doing all the greatest of writers, playwrights, dramatic literature in the world, from Shakespeare to Ibsen to Tolstoy to Gorky to, you know, all those Goldoni and Molière and, you know, all these people I have acted in their plays, so I am very spoilt. And then when I see a script coming from Bombay, it feels like ये 8 साल के बच्चों के लिए लिखा गया है क्या? And then you're like, you know, what do you do? And then in the desert of script, you finally find one Mukti Bhavan, and you're like, oh God, somebody is thinking something beautiful, you know. So I didn't even read the script before I said, yes, I read the synopsis and I met the director and I said, I'm going to do your film. And I read the script and I realized, thank God I said yes. Pariksha, Mr. Prakash Jha has narrated the story to me face to face without telling me that he wanted me to act in that. He was having lunch and he said, एक story सुनाओ, मैंने सुनाई. Then he started his story. Then I said, why are you telling me this? I would like you to act in the lead. I'm like, oh my God, आप तो बच्चन साहब के साथ काम करते हैं, मुझे आपने लीड। उसका जवाब मैं नहीं बोल पाऊंगा ऑफिशियली। ठीक है, thank you so much, thank you. Okay, so that was a very, very interesting conversation on acting and Bollywood and cinema in general.